आपका टोटल मंथली इनकम कितना है आज के दिन? Should be around 140. Can you give me an estimate of total amount that you have earned since you have started working? It should be around 20. तो आप बोल रहे हो कि आपने 20-22 लाख कमाए हैं, उसमें से you have managed to save 15 lakhs. Other than that, I basically have a startup called उस पे बेसिकली टीम और AWS एंड एवरीथिंग ऑल कॉस्ट मिला के 3,60,000 इज व्हाट आई नीड एवरी सिंगल मंथ एंड दीज आर लाइक बेसिक नीड्स विच आई हैव टू स्पेंड. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज मैं मुंबई में हूँ और मेरे साथ है परम जो एक प्रोडक्ट मैनेजर है और आज इनके साथ बैठ के आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस. परम, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच अंशुमन फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो. तो फर्स्टली आप ये बताओ कि आप करते क्या हो? बेसिकली मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एक फिनटेक स्टार्टअप है and I work for them basically. How long have you been working for? Around 3 years अभी हो गए. क्या पढ़ाई की थी आपने? I did bachelor's in IT basically BSc IT किया था मैंने. Okay. And ये बताओ कि ये प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है? प्रोडक्ट मैनेजर का वर्क सिंपल है. बेसिकली देर आर 4 पार्ट्स टू एनी ऐप और एनी प्रोडक्ट विच इज़ बिजनेस, कस्टमर्स एंड देन देर इज डिज़ाइन एंड देन देर इज टेक. सो प्रोडक्ट मैनेजर ये सबको एक सिंक्रोनी में लाता है एंड वेर एवर देर इज एनी हेल्प नीडेड दैट्स वेयर ही गोज इनटू एंड वर्क्स आउट in that manner basically. So does that mean that you have to know the language and understand the technicalities of every domain? Correct. It helps a lot and also you have to spend a lot of time basically in the industry to gain more experience into it basically. Generally मैंने ये देखा कि startups में PMs are there and Bangalore में तो they are highly paid, right? Correct. What's the pay situation in Mumbai for a product manager with 3 years of experience? It is decent. It is around from 16 to 24. That is the pay scale they go into. Basically, if you have 3 years experience and you are a product manager, not an associate product manager. So when you started working at the age of 21, right? What was your first salary? It was 20,000. I was working for Deloitte. Okay, ठीक है. And as of today, 2024, how much do you earn? Right now, my CTC is 18 lakhs. And what's your take-home salary and what are some of the perks offered by this company? It is from 1.2 to 1.3 lakh. And the perks which I get is just a health insurance and nothing else like EPF मिलता है, that's it. EPF में आपका हर महीने आपका contribution that कितना है? is 8,000. 8,000 आपका है और आपकी कंपनी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दोनों में इनको दे रही है. ओके, तो इससे आपका ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है. करेक्ट. फिक्स्ड एक. तो अभी आप उसके अलावा आप कुछ करते हो, क्या है आपका? सो अदर देन दैट आई बेसिकली हैव अ स्टार्टअप कॉल्ड टुस्टा एंड व्हाट वी डू इज वी ऑटोमेट स्ट्रैटेजीज फॉर रिटेल traders and that's our job basically. So since how long have you been working on your startup? It's been 7 months and I've been working. Okay, and have you started making any money? We have, like right now if I see from added value of I also trade in cryptos. So if I add crypto trading plus this, basically it's around 3 lakhs. 3 lakhs. Do you draw anything or reinvesting the entire amount? No, like in business I have to reinvest right now, but crypto I keep on withdrawing. तो आपका total monthly income कितना है आज के दिन? Should be around 140 जैसा. 140 जैसा, ठीक है. So basically I am the only son of my parents. So for that I don't have any term policy right now. So if I want to get a term policy, what should be the amount and should I split in between like 2 policies, 3 policies or single policy? Because I have heard like बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है वो term policy का amount and stuff. ठीक है, सबसे पहले टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए क्योंकि आप जितना जल्दी लोगे उसका प्रीमियम कम होगा. द वे टू कैलकुलेट द इनकम इज बाय यूजिंग द फ्रेमवर्क कॉल्ड इंश्योर. हमने अभी खुद बनाया. तो इस फ्रेमवर्क का नाम है इंश्योर, INSURE. ठीक है. सबसे पहली चीज़ है इनकम रिप्लेसमेंट. ठीक है. इफ़ यू आर नॉट अराउंड देन द अमाउंट should generate enough income such that your family is able to survive with just that amount. वो कैसे होगा? तो अगर आपके पास 1 करोड़ का टर्म प्लान है, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं. ये 1 करोड़ रुपए अगर आप जुडिशियसली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहीं पे डालोगे, यू कैन जनरेट अ रिटर्न ऑफ 10 to 11%. ओके, करंटली इन्फ्लेशन इज एट 6-7%. तो अगर आप हर साल 3 से 4% उससे निकालोगे ना, एंड आफ्टर फैक्टरिंग फॉर इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ योर अमाउंट स्टिल आइदर रिमेन्स द सेम और इंक्रीजेस. तो लेट्स से अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 4% ऑफ x शुड बी 5 lakhs. तो कितना होगा? वो आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द कवर शुड बी इनफ कि आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके उससे आप रेगुलर विड्रॉ करो और आपकी फैमिली का वो इनकम हो जाना चाहिए. आपके केस में आज के दिन
आपके एक्सपेंसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ये वाला जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, राइट, बिकॉज 11%, 6% उसमें से हटा दो इन्फ्लेशन का, और प्लस आप सिर्फ 3 या 4% निकाल रहे हो, राइट। दूसरी चीज़ इज नेट डेट एंड लाइबिलिटीज। अगर आपका लेट्स से 1 करोड़ का होम लोन है, ठीक है, और आपका 50,000 का खर्चा है, देन इट्स नॉट राइट कि आप सिर्फ वो इनकम रिप्लेसमेंट वाला चीज़ देखो। आपको ये भी देखना चाहिए कि एज वेन इफ यू आर नॉट अराउंड, द लोन शुड बी पेड ऑफ बाय द टर्म प्लान, राइट। बिकॉज मतलब वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी हो जाएगी, वो बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो इनकम रिप्लेसमेंट, सेकंड इज कैलकुलेट और योर नेट डेट, और वो अमाउंट भी आपके कवर में ऐड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इंश्योरेंस। तो आपके जो भी सेविंग्स है, आपके जो पोर्टफोलियो है, वो अमाउंट आपको माइनस करना है आपके कवर से। तो जो इनकम रिप्लेसमेंट वाला फिगर हो गया, डेट वाला फिगर हो गया, ये लेट्स से अगर 2 करोड़ हो गया और आपकी टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख है, तो यू कैन टेक अ कवर ऑफ 1.5 करोड़। गॉट इट। नेक्स्ट चीज इज अनफोर्सीन एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। इस पे थोड़ा आप अगर 1.5 करोड़ आपका अमाउंट बन रहा है, उसमें आप 20-30 लाख एक्स्ट्रा डाल दो, ताकि वो अमाउंट मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आप अभी 24 साल के हो, इसीलिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये, ठीक है। जब आप 35 साल के हो गए, ये 30,000 रुपये बन सकते हैं 2 लाख, 3 लाख रुपए पर मंथ। तो उसके हिसाब से जो आपका कवर है, वो कवर तो सेम नहीं होगा, यू हैव टू इंक्रीज द कवर। सो इसीलिए टाइमली रीएडजस्टमेंट एंड रिव्यू करना पड़ेगा। तो आपका जो भी लाइफ का जो मेजर माइलस्टोन होगा ना, लेट्स से you started living away from your parents, या फिर you got married, you got kids, as and when these milestones increase your monthly responsibilities, your cover also needs to change. And the last thing is evaluate your long term goals. अगर ऐसा गोल है, आपको पता है कि लेट्स से बच्चे हो गए आपके, और आपको पता है कि अब चिल्ड्रंस एजुकेशन तो बहुत बड़ा खर्चा है, उसमें भी 1-8 करोड़ डालना है, तो वो भी आपके कवर में ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द इंश्योर फ्रेमवर्क, INSURE, बहुत लंबा है आई नो, बट ये चीज़ का भी हम एक PDF डाल देंगे, आप रीड करते रहना अपने हिसाब से, जिससे आप अपना अप्रोप्रिएट टर्म कवर ले सको, ताकि आगे जाके कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपकी फैमिली को सडनली फाइनेंशियली इनसिक्योर नहीं फील होगा। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हो, तो आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अर्ली लेते हो, आपकी एज में लेते हो, तो देयर इज अ चांस कि आपको 1 करोड़ का कवर कुछ 700 या 800 रुपये पर मंथ में मिले, और 2 करोड़ का कवर करीब 1100 रुपये पर मंथ में। वेन एवर यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस, ठीक है, यू शुड ऑलवेज चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी। उसका फॉर्मूला ये है, the percentage of claims that were paid out divided by the total number of claims. As per IRDAI's report of 2022-2023, Max Life Insurance had the claim settlement ratio of 99.51% for that financial year. जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, तो उसके साथ थोड़े एडिशनल राइडर्स भी लेने चाहिए, जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस कवर, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आप काम ना कर पाए, उसमें भी आपको वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाए। आई नो दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल टॉपिक, बट आई फील दैट इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एंड देखो, फैमिली का जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ पैरामाउंट। तो ऐसे जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, हाँ लेना चाहिए, और जितना जल्दी लोगे वो उतना ही सस्ता होगा, ठीक है। जनरली गाइज, ओनली पीपल विथ एन इनकम कैन बाय टर्म इंश्योरेंस, बट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हाउस हस्बैंड्स और हाउस वाइफ्स को भी टर्म इंश्योरेंस खरीदने का ऑप्शन मिलता है विदाउट शोइंग देयर हस्बैंड और वाइफ्स इनकम प्रूफ। तो इससे आपके पूरी फैमिली को 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सो अगर आपने या फिर आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस अभी तक नहीं खरीदा, आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस चेकआउट कर लो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गई आपकी इनकम की बात, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसेस, right? So firstly, do you live with your family? Do you live alone? Do you own this house or do you rent it? What's the situation? So I'm fortunate enough that I still live with my parents and they are letting me live with them. Yeah. And so I don't have expenses for them. This house is owned by us, so I don't have to pay any rent for this basically. Yeah. Do you have to contribute to the food expenses for your house? I have to, like there is a small chunk. And grocery and food like Zomato orders वगैरह सब मिला के it is around 5,000 which I spend. Very nice. ठीक है. Next is travel. Are you expected to travel to office every day or is it a work from home situation? I have to go there like monthly twice जैसा situation है.
So like I had bought a car long back, Okay. and through that it is a used car. Yeah. And उसके expenses होते हैं, उसके fuel और maintenance, that is around 6,600 monthly I have to spend on it. ठीक है. You said that you bought a car long time back. Right, ठीक है. How old were you? 21. 21. And did you buy it with your own money? Own money, yeah. Wow. And But did it's a used car, so that's fine. But did you take a loan? no, I didn't take a loan. It Okay. was fully paid. Okay. And how much did the car cost? 3 lakhs. Okay, Right. how old was this car? It was around 10 years. जनरली अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदने का सोच रहे हो 5-6 years old is like a sweet spot because the depreciation like most of the value is depreciated और अगले 2-3 साल तक वो उससे ज़्यादा depreciate शायद उतना ज़्यादा depreciate नहीं होगा. तो अगर आप 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो जो 5 साल पुरानी है, after using for 2 years you can sell it for like 4.1 lakhs. ठीक है. Apart from this there are utility bills, right? Electricity, water, Right. maintenance, internet. ये सारी utility bills में आप contribute करते हो? Right, so I pay for like a mixed plan Airtel ka, which has internet and all my mobile numbers and OTTs. Together that is 2,500 every month. Next, any other expenses like recurring expenses that you have? I have an autoimmune condition and my mom has diabetes. So I Okay. pay for the medical basically part of it, and that is around 5,000 every month I have to pay. Okay, so 5,000 are your recurring medical expenses. Other than that, Zomato food, if I go out, वो सबका मिला के is around 5,000. So on a monthly basis, how much do you spend in total? In total, like in a month, basically I spend 24,000, 25,000. That is the range I spend, and these are like basic needs which I have to spend. There is like I can't go out of this basically. And on top of this, there are other 2 expenses which I have. One of them is basically buying any good tech, but I don't do it every single month. It is basically yearly once I buy, so उसका मैंने निकाला. And another expense which I have is basically of traveling. So I just started traveling international, और उसका खर्चा मैंने देखा, it's like 10,000 every month I save up. Very which nice. is basically for this, but it is not कि हर month जाता है, it is one go में कभी कभी spend हो जाता है. ठीक है. Counted in monthly itself. और इसके अलावा कोई liability या कोई loans चल रहे हैं? No loans for now. ठीक है. Have you ever taken loans? Never. So total monthly expenditure including everything. It's around 42,000. आपने बोला कि आप हर महीने 10,000 रुपए ट्रैवलिंग के लिए साइड में रखते हो. Where do you park this amount? It is basically a tough situation right now. So what I do is I have like a bank जिसमें एक अलग account रखा है मैंने, जिसमें I keep free cash इसके अंदर, and basically use whenever I have to make some big purchase. Okay, so you have a secondary bank account. Secondary bank account. क्या उसका UPI ID आपके फोन में है? There is no UPI, there is nothing, just debit card मैंने रखा है in emergency case if I need any money. ठीक है. So detaching he basically detached himself from that account. ठीक है. And this is what I also used to do back in the day. मेरा जो emergency fund था वो एक SBI के बैंक अकाउंट में था. उसमें UPI नहीं था, उसमें नेट बैंकिंग नहीं था, और उसका डेबिट कार्ड मेरे पास था, बट मैं बहुत आलसी हूँ. I don't go to the ATM. So if you are saving up for something and if you want it to be totally liquid कि जब चाहिए, अगर 1 सेकंड में चाहिए तभी लेना चाहिए, तो ये अच्छा है. सेकेंडरी बैंक अकाउंट रखो और उसमें बस एक डेबिट कार्ड रखो. ठीक है. नो नेट बैंकिंग, नो UPI. आपके पैसे खुद में खुद बचते जाएंगे. अब महीने के एंड में 80-90,000 आप बचा ही पा रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट डू यू डू विद द एक्सेस सेविंग्स, राइट? हाउ डू यू प्लान इट? हाउ डू यू मैनेज इट? So earlier I didn't have any system in place basically where to park these funds and how should I diversify. ठीक है. तो क्या करते थे पहले? पहले तो बस रख दिया बैंक में, और जहाँ जहाँ मुझे स्टॉक्स में अगर राइट टाइम मिला या क्रिप्टो में बेसिकली आई यूज टू ट्रेड, तो उसमें जब भी फंड्स चाहिए होता था आई यूज टू यूज देयर. ठीक है. डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हो? डायरेक्ट स्टॉक्स. डायरेक्ट स्टॉक्स में के पोर्टफोलियो का साइज कितना है? इट इज अराउंड 80,000 राइट नाउ. अराउंड 80,000. ठीक है, कम है. दूसरा आपने बोला क्रिप्टो. क्रिप्टो में आपका कितना है? क्रिप्टो के अंदर आई कीप जीरो एवरी टाइम आई ट्रेड, एंड उसके बाद ट्रेडिंग फंड जीरो कर देता हूँ. बट व्हाट आई एंटर विद फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग इज विद अराउंड 20 to 30,000 इज द रेंज. ओके. एंड डू यू यूज लेवरेज? आई टेक लेवरेज. ओके. हाउ मच? आई यूज टू टेक लाइक अ लॉट ऑफ अमाउंट. अभी तो मैं 10x 5x वैसे लेता हूँ. 10x आपने कैजुअली बोल दिया. ठीक है. बट ओके, कूल. उसके पहले आप कितना लेते थे? नहीं, आई हैव टेकन 120x and I have liquidated all my funds also in the past. Like in 2021 I had lost around $800 in like a single trade itself within 2 hours. वो जो Elon Musk SNL हुआ था उसमें. या जब आपने डोज कॉइन में लगा दिए होंगे ये सोच के कि 8 मई को Elon Musk अच्छी बातें बोलेंगे और वो जूप करेगा. बट थिंग्स डिडंट वर्क दैट वे. एंड दैट्स द थिंग, राइट? इफ एवरीवन थिंक्स समथिंग्स गोइंग टू हैपन, then most of the times
that news is already discounted. Okay, तो stocks में 80,000 current portfolio, crypto 0. Next. Other than that, I have a FD currently at 7%, 3,25,000 जैसा. ठीक है, और ये flexi FD है, मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो. Correct, I can withdraw, but उसमें lock in as such कुछ नहीं है, exit fees भी नहीं है. But 6 months is the minimum tenure if you want to reap the interest basically. तो FDs में भी generally अगर आप normal FD में करते हो, ठीक है, और अगर 1 साल का वो fixed deposit है, if you try to withdraw partially or total before the tenure ends, then there is a penalty. But there are new types of FDs, ठीक है, every bank has a different nomenclature, कोई flexi FD बोलता है, कोई और active FD बोलता है, कुछ भी बोलते हैं, उसमें आप कभी भी निकाल सकते हो और पेनल्टी होती नहीं है. तो ये चीज़ आपके इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है. ठीक है, सो फिक्स डिपॉजिट में 320, तो टोटल सेविंग्स 4L. ओके, आपका जो सेकेंडरी अकाउंट है ट्रैवल फंड, उसमें कितना है? उसके अंदर अभी आई हैव रिड्यूस 80,000 जैसा उसमें रखा है. ठीक है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड? टू दुबई लास्ट अक्टूबर बेसिकली 2023. ठीक है, सही है, मतलब यू आर यूटिलाइजिंग. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप वो पैसा जमा रहे हो बहुत टाइम तक और अगर आप वो ट्रैवल नहीं कर रहे हो, देन यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट इट इन बेटर वेज एंड रीप सम बेनिफिट्स. अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 2-3% मिल रहा है, वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है. सो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो 6 महीने में या 3 महीने में, तभी ये सेकेंडरी बैंक अकाउंट में करो, क्योंकि अगर सेकेंडरी बैंक अकाउंट में बहुत टाइम तक पैसे रहे ना, तो उसमें आप कुछ कमा नहीं पाओगे. सो यू आर लूजिंग, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हायर. तो अब 4.8 lakhs हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. और कहाँ पे सेव किया आपने? अदर देन दैट आई हैड बॉट फिजिकल गोल्ड. ओके, एंड दैट वाज अराउंड 3 लाख. लास्ट 2022 एंड में खरीदा था? 2020 मैंने एज सच ये 23 में अक्टूबर. कितने में खरीदा था? इट वाज अराउंड 2,78,000 वाज व्हाट आई हैड इन्वेस्टेड. अभी 40,000 जैसा मुझे ग्रोथ मिला उसमें. क्या, नो कंप्लेंट्स, राइट? काफी अच्छा रिटर्न मिला है. गोल्ड हैज गिवन अ ग्रेट रन इन 2023. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील द रीजन व्हाई ही इन्वेस्टेड इन गोल्ड ड्यूरिंग वॉर इज बिकॉज जब भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है ना, और ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या फिर कुछ टेंशन चल रहा हो, देन गोल्ड कैन एक्ट एज अ सेफ हेवन. प्लस ऐसा भी हिस्टोरिकली देखा गया कि जब स्टॉक मार्केट्स नीचे जाते हैं तो लोग अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट, आई मीन आई जस्ट थॉट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो अब आपका बन गया 480 plus 320, 8 lakhs. So you have saved a lot of amount for your age, right? तो 8 लाख आपने बचा लिया. Apart from that, have you saved anywhere? I like in my parents account I have added 4.5 lakhs. Just मैं देखूँ नहीं वो funds को, उसके लिए I have just kept it there. So 12.5 lakhs. ये एक चीज मैं बहुत फंडामेंटली बिलीव करता हूँ. ठीक है, मैंने कहीं सुनी थी, मुझे पता नहीं, दैट इफ यू हैव एनी प्रिविलेज यू हैव टू एक्सप्लॉइट इट, राइट? सो लाइक इन हिज केस, बिकॉज ही स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स एंड ही स्टेइंग इन अ सिटी लाइक मुंबई विच हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वेयर द पे इज हाई. ओके, इनके केस में एक्सपेंसेस कम है एंड बिकॉज हिज एक्सपेंसेस आर लो, he managed to create like a very big corpus. So like his risk appetite has gone up. इसके अलावा और कुछ आपने बचा है? और काफी है. कितना हुआ टोटल, आप दिखाइए अपना वो. अराउंड 15 lakhs टोटल लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स गिन के, प्लस ELSS मैंने इसमें ऐड ऑन किया जितना उसमें था. ELSS कितना है? लास्ट कितने साल से आप कर रहे हो? सो ELSS मैंने टैक्सिंग मुझे आता ही नहीं है. मोस्ट ऑफ हम लोग इंजीनियर्स को किसी को भी टैक्सेशन अच्छे से आता नहीं है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन IT इंडस्ट्री ऑल्सो व्हाट आई सी. एंड उसकी वजह से लास्ट टाइम व्हेन माय पे स्केल वाज लाइक 10 लाख, उस पर मैंने पूरा टैक्स भरा 85,000. Oh. So I have lost lot of money making mistakes, and after that I have learned something from that basically. But did your family not have a chartered accountant या ऐसा कुछ situation? So I made a mistake कि मैंने online एक को पकड़ा था and he didn't guide me correctly. Okay. So because of that this happened. ठीक है. So after that basically this is the total 15 lakhs as such. 15 lakhs, ठीक है. आप एक चीज़ बताओ, can you give me an estimate of total amount that you have earned since you have started working? It should be around 20 lakhs. 20 lakhs. तो आप बोल रहे हो कि आपने 20-22 लाख कमाए हैं, उसमें से you have managed to save 15 lakhs. Because I live with my parents, that's the reason I was able to, I mean, save this basically. Commendable job. ये बहुत ज़्यादा judiciously आपने पैसे को सेव किया है, because of which आगे जाके just the fact that you have so much savings, you can take more risks, you can take bigger bets. Like अगर let's say 6 महीने बाद आपका स्टार्टअप चल पड़ा, right, you can literally step back from your job, right, ठीक है, not recommended, वो आपका डिसीजन है, ठीक है, बट उससे आप वो वाला रिस्क लेने का आपके पास चॉइस है, right,
ठीक है, and that's the power of savings. Savings and frugality gives you the freedom to have more control over your life. We have been saying this since the first episode of Fix Your Finance, and now we have a living example. तो अभी आपका ये सब देख के everything looks sorted. So why did you invite me? And are there any ways wherein I can, add value in your life? For sure. I mean, the major problem right now is like in the personal scenario, what you see is most of them are in fixed assets. If you see, nothing is much is invested. Mostly सिर्फ ELSS mutual funds है और थोड़े stocks में रखे हैं. ठीक है. That also for like tax saving I had added. Other than that, nothing is in like high growth factor में किसी में I have not added any Nothing. funds. So one thing I want to clear कि what should I do for that? Okay. What diversification and what amount should I keep for that? ठीक है, पहला क्वेश्चन. इसके लिए आपको सिर्फ 2 ही सवाल के जवाब चाहिए. सबसे पहले, what am I investing for how much time and how much do I need? Okay. सो बेसिकली आपको अब गोल्स बनाने पड़ेंगे, एक्शनेबल गोल्स. ठीक है, एक्शनेबल गोल्स आर आई नीड 20 lakhs टू फंड माई वेडिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन 7 years. ऐसे आपको अलग अलग गोल्स बनाने पड़ेंगे. अभी आपका क्या चल रहा है? अभी आपका सेफ्टी चल रहा है सब. कि कुछ अगर समथिंग हैपन्स देन योर मनी विल सेव यू, राइट? बट जैसे अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात हो गई, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है. इज योर एंटायर फैमिली इंश्योर्ड? Yes, it's a floater plan. ठीक है, सो मेडिकल इमरजेंसी ऑफ योर एंटायर फैमिली इज सिक्योर्ड. ठीक है, तो उसका उतना कैश की जरूरत नहीं है. ओके, उसके अलावा थोड़े बहुत इमरजेंसीज हियर एंड देन आएंगे. बट आई फील जितना आपने सेव किया है, लाइक यू ऑल्सो सेड, उतने सेव करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू इन्वेस्ट. ठीक है, बिकॉज यू आर लूजिंग आउट ऑन इंटरेस्ट, है ना. 6-7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है. सेविंग्स अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है. द फर्स्ट सोल्यूशन एंड द आइडियल सोल्यूशन वुड बी दैट यू ट्राई and get the funding if you have the intent. If you are open to raising funding, then that is the ideal way. Because you said कि अगर 100 कस्टमर से 10,000 कस्टमर होंगे तो उसमें बहुत खर्चा होगा. तो कॉन्स्टेंटली अपने सेविंग से कैसे हो पाएगा वो चीज, राइट? तो आपको उठाना पड़ेगा. इफ नॉट, देन वी हैव टू क्रिएट अ गोल. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम हियर. ये बताओ, 21.5 लाख इन हाउ मेनी मंथ्स? Around 1 year is what I'm looking into. So after a year you'll have to start spending this amount. Correct. ठीक है, since you need the money in 1 year, like investing it in equity is risky. ठीक है, because the volatility is higher, right? 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी में, और अगर एक डिफाइंड गोल है, जैसे आपके केस में 1 साल बाद आपको वो पैसा चाहिए ही चाहिए, राइट? बिजनेस है. ठीक है, तो इसीलिए वो आपको रिस्क ज्यादा आप ले नहीं सकते हो. आज के एनवायरनमेंट में फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर ऑफरिंग लाइक ग्रेट रिटर्न्स. 1 साल में आपको 7 से 7.5% का रिटर्न मिल सकता है. दैट्स द सेफेस्ट बेट आउट देयर. यू कैन ऑल्सो कंसिडर समथिंग कॉल्ड द आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स. ओके, ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स बिफोर? तो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स ये होता है कि लेट्स से ये फंड मैनेजर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में खरीदेंगे और कैश मार्केट में बेचेंगे, या फिर कैश मार्केट में खरीदेंगे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में बेचेंगे. आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट. तो अभी लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज कैश में 2740 में चल रहा है और F&O मार्केट में 2742 में चल रहा है, 2741 में चल रहा है. तो वो इधर से खरीदेंगे बहुत सारा और उधर बेच देंगे. So the gap between the gap is what they make. Got it. So what is the upsurge of it? Like what is the return as such? Yeah, so like in the last 1 or 2 years, it has given around 7 to 8%. I think 7.5%. Okay. The biggest advantage of arbitrage mutual funds versus fixed deposits is that arbitrage mutual funds is equity. ठीक है, और इक्विटी में अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट होगा, एंड दैट इज 15%. ओके, बट जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट होते हैं, दैट इंटरेस्ट इज एडेड टू योर इनकम. तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा उस पे लगेगा. आपके केस में इनकम टैक्स स्लैब क्या है? 18-30%. 30%, राइट? तो 30% मतलब आपका एफडी का इंटरेस्ट का 30% आप पे उस पे लगेगा. तो टैक्सेशन वाइज आर्बिट्राज फंड्स आर बेटर, बट हाउएवर गाइज फिक्स्ड डिपॉजिट से वो ज्यादा रिस्की है. सो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर डिफरेंट एवेन्यूज टू इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड, यू कैन ऑल्सो रीड अप अबाउट आर्बिट्राज फंड्स. तो ये अमाउंट आपको अगर 1 साल में ही चाहिए, आपको सेव करना पड़ेगा. उसमें हाई ग्रोथ नहीं कमाना है, आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं कमाने, बिकॉज दैट अमाउंट हैज टू बी एब्सोल्युटली सेफ. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगले 1 साल आप जो भी कमाओगे, जो भी आपके इंक्रीमेंटल अमाउंट्स है, जो भी आपके सेविंग्स होंगे, अपार्ट फ्रॉम द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग हैज टू बी सेव्ड फॉर दिस पर्पज ओनली.
राइट. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर प्लेस. आई होप आपको इस कॉन्वर्जेशन के बाद कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपने जो लास्ट 3-4 साल में इतने डिसिप्लिन से सेव वेव किया है, अपने आप को अपस्किल किया है, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ी है, आई विश यू डू द सेम थिंग. आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर आप ऐसे ही चलते रहो, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट अ सक्सेसफुल वेंचर. एंड that's it for today's video guys. Thank you so much ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए. अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, hit the like button, and if you are new to the channel consider subscribing. guys एक और चीज़ है, 80 से 90% लोग ये वीडियो देखते हैं, पूरा विडियो देखते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज सब्सक्राइब. Our target is to reach 1 million subscribers by March end, financial year end. Please, your love and support will keep us motivated. Goodbye.